तकबीर, तकबीर, तकबीर। मेरा तेरा रिश्ता क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, तकबीर। थोड़ा नीचे बस बस ओके। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, be upon all of you. It is a pleasure and honor to be in Pakistan and especially in the city of Lahore. And I'm happy to see thousands of people who have gathered here today in order to listen to the lecture. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of you. It is good to see the enthusiasm and determination of the Pakistani people for the cause of Islam and for Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all the people in Pakistan. And may Allah subhanahu wa ta'ala unite all of them on the Quran and the authentic ahadith of our beloved Prophet Muhammad. May peace and blessings be upon him. The topic of my talk is religion in the right perspective. Religion, according to the Oxford Dictionary, it means a belief in a superhuman controlling power, a personal God or gods that deserve worship and obedience. In short, religion means belief in God. In order to understand any religion in the right perspective, we should know the concept of God in that religion. And in order to understand any religion in the right perspective, we should look at the authentic sources. We should look at the sacred scriptures of that religion. I started my talk with the quotation from the glorious Quran, from Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 64. Qul ya ahlal kitab, say, O people of the book, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah, that we worship none but one Almighty God. Wala nushrika bihi shay'a, that we associate no partners with him. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. Fa'in tawallaw, if then they turn back. Faqulu ashhadu, say ye bear witness, bi'anna muslimun, that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. This verse of the glorious Quran, it is the master key for doing da'wah. It shows us how to talk to different types of people, people of different religions. What does it say? Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Come to common terms
as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah, that we worship none but one Almighty God. One thing common, alhamdulillah, in all the major world religions is that the followers of that religion, the God which they worship, they believe He is the same for themselves as well as for the others. For example, the God which the Hindus worship, they believe He is the same for the Hindus as well as the non-Hindus. लोग से गुजारिश है क्या उर्दू में लेक्चर हो, क्योंकि काफ़ी लोग को अंग्रेज़ी दुश्वारी हो रही है, समझने में मुश्किल हो रही है। तो इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह उर्दू में बात करूँगा। आज के इस तकरीर का मौजू है मजहब का सही तसव्वुर। मजहब का मतलब क्या होता है? Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal God or God that deserve worship and obedience. मतलब ईमान रखना या खुदा में मानना, एक खुदा में या मुख्तलिफ खुदा में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ये मतलब होता है रिलीजन का। आप ईमान रखते हैं एक पर्सनल खुदा में या कोई खुदा में। So this is the definition of religion according to the Oxford Dictionary. अगर आपको कोई मजहब सही तरीके से समझना है तो जरूरी है क्या आप मजहबी किताब पढ़े वो मजहब का, और खुदा का तसव्वुर वो मजहब में आप जाने। तो कोई भी मजहब सही तरीके से समझने के लिए आप जरूरी है क्या आप खुदा का सही तसव्वुर वो मजहब में जाने, बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक सोर्सेस, बेस्ड ऑन द सीक्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ दैट रिलीजन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरत आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, कहो ए अहले किताब से, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें, वला नुशरिक बिही शैआ, और हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में फरमा रहे हैं, क्या हम जब अहले किताब से बात कर रहे हैं तो
यकसानियत के ऊपर बात करना चाहिए। और सबसे अहम चीज जो है वो है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक खुदा की इबादत करें। वक्त की किल्लत की वजह से सारे मजहब का जिक्र नहीं कर सकते हैं, तो आज के इस तकरीर में हम इंशाअल्लाह 4 मजहब का तसव्वुर का जिक्र करेंगे। जुडाइज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। पहले इंशाअल्लाह हम हिंदुइज्म का सही तसव्वुर के बारे में जिक्र करेंगे, और हम हिंदुइज्म के बारे में जिक्र करेंगे और खुदा का तसव्वुर हिंदुइज्म के बारे में बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक सोर्सेस। और मैं ये कहना भूल गया तकरीर से पहले, क्या मेरी तालीम अंग्रेजी और अरबी में हुई है ग्रेड 12 तक, ए लेवल्स तक, और उसके बाद मेरी तालीम अरबी में हुई है मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स की। तो इस तकरीर में काफ़ी गलतियां होंगी, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के ऊपर तवज्जो देंगे। तो अगर आप कोई कॉमन हिंदू से पूछेंगे क्या आप कितने खुदा में मानते हैं, इन हाउ मेनी गॉड्स डू यू बिलीव, तो कोई कहेंगे 1, कोई कहेंगे 3, कोई कहेंगे 10, कोई कहेंगे 1000, कोई कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। तो मुख्तलिफ जवाब देते हैं हिंदू। लेकिन if you ask a learned Hindu who's well versed with the scriptures, he will tell you that the Hindus should believe and worship in only one God. लेकिन अगर आप एक मुतखस्सिस को पूछेंगे जो हिंदू मजहबी किताब को जानता है, जो लर्नड हिंदू है, वो कहेगा क्या हिंदू सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए। लेकिन हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू कहता है कि हर चीज खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है, द ट्री इज गॉड, द सन इज गॉड, द मून इज गॉड, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है। और हम मुसलमान क्या कहते हैं, हर चीज खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है, इंसान खुदा का है। So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God, we Muslims say everything belongs to God. आम हिंदू कहता है हर चीज खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं क्या हर चीज खुदा की है, everything belongs to God. So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God, we Muslims say everything is God's, G-O-D with an apostrophe S. So the major difference, सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो हिंदू और मुसलमान में है, सिर्फ ये डिफरेंस है apostrophe S का। आम हिंदू कहता है हर चीज खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं हर चीज खुदा की है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। अगर हम इस अपॉस्ट्रफी एस का डिफरेंस सॉल्व कर सकते हैं, हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इसको कैसा कर सकते हैं, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कम टू कॉमन टर्म्स एज बिटवीन अस एंड यू, आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली चीज क्या है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें।
वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें। तो सबसे अहम चीज है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक खुदा की इबादत करें। पहले हम हिंदुइज्म का सही तसव्वुर समझेंगे, हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर, और खुदा का तसव्वुर हिंदुइज्म में समझेंगे हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर। हिंदू मजहबी किताब में से जो सीक्रेट किताब है, जो मुकद्दस किताब है हिंदुइज्म में से, इनमें से एक किस्म है जिसे कहते हैं उपनिषद। ये वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट हिंदू स्क्रिप्चर्स है। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, वर्स नंबर 1। It is mentioned Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekam vidityam. खुदा एक ही है और उसका दूसरा नहीं है। God is only one without a second. सुतास्तर उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर, आयत नंबर 9। नाचास्य कसिज जनिता न चदिपा। Of that Lord, he has got no superior. He has got no lords. He has got no parents. He has got no father. He has got no mother. खुदा का कोई माँ बाप नहीं है, उनका कोई सुपीरियर नहीं है, उनके वालिद नहीं है और उनके वालिदा नहीं है। सुतास्तर उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 4, आयत नंबर 19 में, ना तसी प्रतिमा अस्ति। ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा। ये खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? प्रतिमा का मतलब होता है इमेजेस, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, पिक्चर्स, आइडल्स एटसेट्रा। Almighty God, he has got no images, he has got no pictures, he has got no paintings, he has got no sculpture. खुदा का कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है। तो अगर आप सुतास्तर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या खुदा का कोई इमेज नहीं होता है। और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो है भगवद गीता। भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 20 में लिखा है, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship the demigods. And demigods, it refers to false gods, it refers to idols. तो ये आयत से हमें समझ में आता है, ये वर्स से हमें समझ में आता है, क्या हम आइडल वर्शिप, बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे सीक्रेट, सबसे मुकद्दस किताब है वेदास। 4 वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और यजुर्वेद में लिखा है, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, नातसी प्रतिमा अस्ति। ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा। वो खुदा का कोई रूप नहीं है, कोई इमेज नहीं है। फर्दरमोर यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 में लिखा है, ऑलमाइटी गॉड ही इज इमेजलेस एंड प्योर। Furthermore, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में लिखा है, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते।
They are entering into darkness, those who worship the asambhuti, that is the natural things like fire, water, air, etc. उन लोग गुमराही में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, जो असंभूति को पूजा करते हैं, जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। मिसाल के तौर पे आग, पानी और दूसरे चीजें। और इस आयत सेम वर्स में ये चीज का जिक्र है, और ये वर्स में आता है, दे आर एंटरिंग मोर इन डार्कनेस दोज हु वर्शिप द संभूति, दैट इज द क्रिएटेड थिंग्स। उन लोग और गुमराही में जा रहे हैं, और अंधेरे में जा रहे हैं, जो लोग संभूति में मानते हैं, जो चीज बनाई हुई गई है, द क्रिएटेड थिंग्स। मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध, आइडल्स एक्सेट्रा। कौन कहता है ये बात? यजुर्वेद कहती है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। Furthermore, अथर्वा वेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 58 वर्स नंबर 3 में लिखा है, देव महाउसी, वेरीली ग्रेट इज ऑलमाइटी गॉड। हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास में से सबसे मुकद्दस, सबसे सेक्रेड है ऋग्वेद। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1 हिम नंबर 146 में लिखा गया है। इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 मंत्रा नंबर 46। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 मंत्रा नंबर 46। एकम सत विप्रबहुधा वेदांते, truth is one, God is one, but sages and saintly people call him by a variety of names. क्या खुदा एक है? God is one, but sages and saintly people call him by a variety of name. लेकिन जो sages और जो saints है, ये मुख्तलिफ नाम से खुदा को पुकारते हैं। और खुदा के जो नेम्स और एट्रीब्यूट्स जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है, no less than 33 names and attributes have been given to Almighty God in the Hindu scriptures in Rigved book number 2 hymn number 1. Furthermore, it is mentioned in Rigved में लिखा है बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में खुदा को ब्रह्मा कहा गया है। God is referred to as Brahma. And if you translate this into Arabic, अगर आप इसका तर्जुमा अरबी में करते हैं तो इसका मतलब होता है खालिक, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है क्रिएटर। हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं है अगर कोई कहता है क्या ऑलमाइटी गॉड, अगर कोई कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटर है या खालिक है, लेकिन अगर कोई कहेगा ऑलमाइटी गॉड खुदा ब्रह्मा है जिसके 4 सर है और हर एक सर के ऊपर क्राउन है, वो हर एक सर के ऊपर एक चीज पहने हैं जिसे क्राउन कहते हैं, तो हम इससे एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, खुदा को एक इमेज दे रहे हैं, और आप सुतास्तरपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है हिंदू मजहबी किताब में, वो है विष्णु। और अगर आप अरबी में इसका तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इसका मतलब होता है रब को रिफर करता है, जिसका अंग्रेजी में सस्टेनर और चेरिशर का मतलब है। हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहता है क्या वो रब है या सस्टेनर या चेरिशर है, लेकिन अगर कोई कहता है क्या खुदा विष्णु है जिसके 4 हाथ है, who has 4 hands and on one of his right hand, और उनके राइट हैंड में चक्रा है जिसको डिस्कस कहते हैं,
and in his left hand he has the conch, and he's flying on the bird of Garuda or reclining on the bed of snakes. क्या वो उड़ रहे हैं एक परिंदे के ऊपर जिसका नाम है गरुदा, और रिक्लाइनिंग ऑन द बेड ऑफ स्नेक्स, या वो कोई बिस्तर पे सो रहे हैं? हम मुसलमान इससे एतराज लेते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, आप खुदा को एक इमेज दे रहे हैं, और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, और सुतास्तर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसके अंदर कहा गया है नातसी प्रतिमा अस्ति, Almighty God, He has got no image. ऋग्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, मा चदान यादवी संसद, do not worship anyone but him alone, praise him alone. और कई आयत इसके अलावा भी हिंदू मजहबी किताब में है जिसके अंदर जिक्र है क्या एक खुदा को मानना चाहिए. इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 मंत्र नंबर 1, मा चदान यादवी संसद, डू नॉट वर्शिप एनीवन बट हिम अलोन, प्रेज हिम अलोन. It is mentioned Rigved, book number 6, hymn number 45, mantra number 16, या एक मुश्ती, worship him alone, praise him alone. क्या सिर्फ उसकी इबादत करो, उसकी तारीफ करो. And the Brahma Sutra, the fundamental creed of Hinduism, जो सबसे अहम चीज हिंदुइज्म में है, फंडामेंटल क्रीड जिसको कहते हैं, वो है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे तो आपको हिंदुइज्म का सही तसव्वुर पता चलेगा, और आप हिंदुइज्म का सही तसव्वुर जानेंगे, और आप समझेंगे खुदा का तसव्वुर हिंदुइज्म में क्या सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए, सिर्फ एक गॉड की इबादत करना चाहिए, और उसके साथ किसी को शरीक ना करना चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए. अभी हम क्रिश्चियनिटी का तसव्वुर का सही तसव्वुर का जिक्र करेंगे बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स, बाइबल के मुतालिक, बाइबल के हिसाब से. और हम खुदा का तसव्वुर क्रिश्चियनिटी में देखेंगे और बेस्ड ऑन द बाइबल, बाइबल के हिसाब से. क्रिश्चियनिटी का सही तसव्वुर का जिक्र करने से पहले मैं कोई अहम चीज का जिक्र करना चाहूंगा. इस्लाम is the only non-Christian faith which makes it an article of faith for its followers to believe in Jesus Christ, peace be upon him. इस्लाम एक ऐसा मजहब है, non-Christian मजहब है, which makes it an article of faith for its followers to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. एक मुसलमान मुसलमान हो नहीं सकता है तब तक जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान लाए. हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे. He was one of the mightiest messengers of Almighty God. अल्लाह के एक सबसे one of the mightiest messengers of Almighty God, one of the mightiest messengers of Almighty God, अल्लाह के अहम पैगंबरों में से थे. हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कई मुअजिज़ात किए, कई मिरेकल्स किए. हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जान दी. हम मानते हैं
क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लेपर्स थे उनको हील किए. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. मुसलमान और जो ईसाई है, हम साथ में जा रहे हैं, लेकिन इख्तिलाफ किस बात के ऊपर है? Where are the parting of ways? इख्तिलाफ इस बात के ऊपर है क्या बहुत से ईसाई ये मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है. Many Christians they claim that Jesus Christ, peace be upon him, he is Almighty God. लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में एक भी आयत नहीं है जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने आप से वाज़ेह तौर पे कहते हैं क्या मैं खुदा हूं, या ये कहते हैं क्या मेरी इबादत करो. ईसा अलैहिस्सलाम का एक भी स्टेटमेंट पूरे बाइबल में नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने आप से कहते हैं क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. So Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of Almighty God. इस आयत में Gospel of John, chapter number 5, verse number 30 में, Gospel of John, chapter number 5, verse number 30 में, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क्या मैं खुद अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता हूं? जो मैं सुनता हूं, वो मैं करता हूं. इससे पता चलता है, ये आयत से, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. इनफैक्ट अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, इट इज मेंशन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 to 20, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम फरमाते हैं, थिंक नॉट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल. ये मत सोचिए क्या मैं ये जो पैगाम है इसको खत्म करने आया हूं. I have come not to destroy but to fulfill. लेकिन मैं आया हूं इस चीज को मुकम्मल करने के लिए. For till the heavens and the earth shall pass, not one jot or tittle of the law or the commandment shall be broken. For if anyone breaks one of the least of the commandments and teaches men to do so, he shall be called least in the kingdom of heaven. For if anyone keeps the commandments and teaches men to do so, he shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. इस आयत से हमें पता चलता है कि अगर आप एक भी छोटी सी कमांडमेंट, छोटी सी चीज जो बाइबल में लिखा गया है, अगर आप उसके खिलाफ करेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे, और अगर आप इस चीजों को फॉलो करेंगे जो बाइबल में लिखा है तो आप जन्नत में जाएंगे. And Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. Jesus Christ, peace be upon him, ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा क्या मैं खुदा हूं. In fact, if you read the Bible, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 24, Jesus Christ, peace be upon him, said, the words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. It is mentioned in the Gospel of John, chapter number 17, verse number 3, this is eternal life, that you may know that there is one God, and Jesus Christ, peace be upon him, who thou hast sent. इस आयतों से हमें पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा क्या मैं खुदा हूं, या ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो. और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 16 और 17 में, वर्स नंबर 16 और 17 में, एक
इंसान ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, ओ गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग्स आई शुड डू दैट आई शैल अटेन इटर्नल लाइफ। ईसा अलैहिस्सलाम को ये शख्स आके कहता है, ओ गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग्स आई शुड डू, क्या अच्छे चीज मैं करूं, व्हाट गुड थिंग्स आई शुड डू so that I shall attain eternal life, ताकि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, eternal life. Jesus Christ, peace be upon him, responds and tells him, why thou callest me good? ईसा अलैहिस्सलाम इनसे कहते, क्यों आप मुझे अच्छा कह रहे हैं? There is only one good and that is the Father in heaven. सिर्फ एक अच्छा है और वो है Father in heaven, वो है खुदा, वो है Almighty God. And if you want to enter eternal life, you must keep the commandments. Jesus Christ, peace be upon him, ये कहते हैं कि अगर आपको जन्नत में एंटर होना है, अगर आपको जन्नत में दाखिल होना है, तो आप कमांडमेंट्स को फॉलो करो, जो अहकामात है, जो चीज बाइबल में लिखे गए हैं, उसे फॉलो करें, तो आप जन्नत में दाखिल होंगे। जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम, ने ये नहीं कहा कि अगर आपको जन्नत में जाना है तो आप मानिए क्या मैं इलाह हूं, मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कभी भी नहीं कहा, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अगर आपको जन्नत में जाना है तो आप जो चीजें बाइबल में लिखी गई है उस पर आप अमल करिए। और बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है, चैप्टर नंबर 2, इट इज मेंशन इन द बुक ऑफ एक्ट्स, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 22। वर्स नंबर 22 में, ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by himself, and you are witness to it. A man approved of God, एक इंसान अल्लाह से चुना हुआ। A man approved of God amongst you, आपके दरमियान, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by himself, and you are witness to it. तो ये जो मौजिज़ात, ये जो मिरेकल्स ईसा अलैहिस्सलाम ने करे, ये अल्लाह के परमिशन से, अल्लाह की इजाजत से इनने किए। और गॉस्पेल ऑफ मार्क में लिखा है, चैप्टर नंबर 12, वर्स नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदना इलाहन अदना खद, हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। क्या ए इज़राइल, हमारा खुदा एक खुदा है। तो अगर आप क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, अगर आप ईसाई की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा क्रिश्चियनिटी इन द राइट पर्सपेक्टिव, ईसाइयत का सही तसव्वुर और खुदा का तसव्वुर ईसाइयत में। अब इंशाअल्लाह हम जुडाइज्म का सही तसव्वुर का जिक्र करेंगे, और खुदा का तसव्वुर जुडाइज्म में क्या है, हम इंशाअल्लाह इसका जिक्र करेंगे। यहूदी का सही तसव्वुर, it is mentioned in the book of Isaiah, chapter number 43, verse number 11. I am the God, and there is no savior besides me. मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई सेवियर नहीं है। It is mentioned in the book of Isaiah, chapter number 45, verse number 5. I am the God, and there is no God besides me. मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। It is mentioned in the book of Isaiah, chapter number 46, verse number 9. I am the God, and there is none like me. मैं खुदा हूं और मेरे जैसा कोई नहीं है। और बुक ऑफ एक्सोडस में लिखा है, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20, आयत नंबर 3 से 5 में, Thou shall have no other God besides me. Thou shalt not make any graven image of any likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them,
for I, thy Lord, thy God is a jealous God. और ये सेम मैसेज, ये सेम पैगाम रिपीटेड है, दोहराया गया है बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 7 से 9 में। क्या खुदा का कोई आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए, उसका इमेज नहीं बनाना चाहिए? तो इस आयत से हमें पता चलता है खुदा का तसव्वुर जुडाइज्म में, क्या हम एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अभी हम इंशाअल्लाह इस्लाम का तसव्वुर का जिक्र करेंगे और अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद में जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर आप कोई भी इंसान से पूछें, कोई भी मुसलमान से पूछेंगे अल्लाह के बारे में, अल्लाह के डेफिनेशन के बारे में, क्या अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब जो आपको दे सकता है वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट, द इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉर इज बिगॉटन, ना वो जनता है ना वो किसी को जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, एंड देयर इज नथिंग लाइक अनटू हिम, और कोई भी अल्लाह के तरह नहीं है। ये एक 4 लाइन डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और अगर कोई कहता है क्या कोई खुदा है, तो इस शख्स को इस सूरतुल इखलास के मुताबिक देखना चाहिए, और अगर वो इस सूरह इखलास के टेस्ट को पास करेगा तो हमें कोई एतराज नहीं है ये शख्स के ऊपर मानना क्या ये खुदा है। तो ये डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। इट इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो इन ग्रीक मीन्स लॉर्ड, थियो का मतलब होता है खुदा, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई। दस थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ गॉड। तो थियोलॉजी का मतलब होता है खुदा के मुतालिक पढ़ाई करना, द स्टडी ऑफ ऑलमाइटी गॉड। And if anyone says that so and so candidate is Almighty God, and if that candidate fits in this 4-line definition, we Muslims, we have got no objection in accepting that candidate as God. कई लोग कहते हैं क्या भगवान रजनीश खुदा है, भगवान रजनीश इज ऑलमाइटी गॉड। आइए भगवान रजनीश को देखते हैं, क्या does he pass the test of सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास के मुतालिक देखते हैं क्या वो टेस्ट पास कर पाते हैं, नहीं। पहली आयत सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक थे? बहुत से लोग, सैकड़ों लोग ने कहे हैं क्या वो खुदा है, और खास तौर से इंडिया में कई लोग ने ये ऐलान किए हैं क्या वो खुदा है, कई इंसान और कई लोग। तो भगवान रजनीश एक वाहिद शख्स नहीं है जिनने क्लेम किया, जिनने दावा किया क्या वो खुदा है। दूसरा पॉइंट, आयत नंबर 2 सूरतुल इखलास की, अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट द इटर्नल। क्या भगवान रजनीश एब्सोल्यूट एंड इटर्नल थे? अगर हम भगवान रजनीश की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या वो अस्थमा से सफर कर रहे थे, वो क्रॉनिक बैकएक, उनको पीठ में प्रॉब्लम था,
He was suffering from asthma, from chronic backache, from diabetes mellitus. उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम था. आप सोचिए, एक बंदा, कोई शख्स कह रहा है क्या वो खुदा है, और खुदा को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, he has diabetes mellitus, he has chronic backache, उनको अस्थमा है. तो इसीलिए भगवान रजनीश को जब आप सूरतुल इखलास के टेस्ट पे डालेंगे, वो पास नहीं होंगे. और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी आयत सूरतुल इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लम यलिद वलम यूलद. ना वो जनता है, ना वो किसी को जना है. बिगेट्स नॉट नॉर इज बिगॉटन. हमें पता है क्या भगवान रजनीश वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए और 1981 में वो यूएसए जाते हैं, और उनके पास माँ बाप भी थे, और वो 1981 में यूएसए जाते हैं और वो ओरेगन में उनका सेंटर शुरू करते हैं जिसे रजनीशपुरम कहा जाता है. और वो कई लोग को अमेरिका में ही टेक्स देम फॉर अ राइड, उनको बेवकूफ बनाते हैं. भगवान रजनीश जब अमेरिका में जाते हैं, कई लोग को अमेरिका में बेवकूफ बनाते हैं, और बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट भगवान रजनीश को पकड़ लेती है, उनको प्रिजन में डाल देती है, उनका कैद कर देती है. और भगवान रजनीश कहते हैं क्या द अमेरिकन गवर्नमेंट दे वर स्लो पॉइजनिंग मी. भगवान रजनीश कहते हैं क्या अमेरिकन गवर्नमेंट मुझे जहर दे रहे थे. आप सोचिए, खुदा को जहर दिया जा रहा है. और बाद में भगवान रजनीश को अमेरिका से बाहर किया जाता है. ही इज किक्ड आउट ऑफ अमेरिका. और वो वापस इंडिया में आते हैं और पुणे में उनका सेंटर शुरू करते हैं. और अगर आप पुणे में जाएंगे तो उनकी टूम, उनकी समाधि में लिखा है, भगवान रजनीश, ओशो रजनीश, नेवर बॉर्न नेवर डाइड. कभी पैदा नहीं हुए या और कभी भी नहीं मरे, बट विजिटेड द अर्थ. लेकिन वो ये अर्थ को विजिट किए, वो इस दुनिया का सफर किए, बट ही विजिटेड द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931. 11 दिसंबर 1931 until the 19th of January 1990. ना कभी पैदा हुए, ना कभी मरे, लेकिन वो इस दुनिया का सफर किए 11th of December 1931 until the 19th of January 1990. उनके टूम के ऊपर ये उन लोग भूल गए लिखने के लिए, क्या उन्हें वीजाज नहीं दिया गया 21 कंट्रीज को विजिट करने के लिए. आप सोचिए, क्या खुदा आ रहा है इस दुनिया में और उन्हें वीजाज लगते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में सफर करने के लिए. और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ये कहते हैं, क्या इफ यू डू नॉट थ्रो रजनीश आउट ऑफ द कंट्री वी शैल बर्न हिज हाउस एज वेल एज हाउस ऑफ हिज फैमिली. और आखिरी जो टेस्ट है सूरतुल इखलास का आयत नंबर 4 में, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद एंड देयर इज नथिंग लाइक अनटू हिम. अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं है. हमें पता है क्या भगवान रजनीश के 2 आंख थे, एक नाक, और उनकी सफेद दाढ़ी थी, और वो सफेद कपड़े पहनते थे. अगर आप खुदा को किसी के भी साथ कंपेयर करेंगे तो वो खुदा है ही नहीं. द मोमेंट यू कैन कंपेयर गॉड टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ही इज नॉट गॉड. वलम यकुल लहु कुफुवन अहद एंड देयर इज नथिंग लाइक अनटू हिम. मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है क्या अल्लाह या गॉड या खुदा
आर्नेल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई कहेगा क्या अल्लाह या खुदा आर्नेल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आप नाम सुने होंगे आर्नेल्ड श्वार्ज़नेगर का, जिनको टाइटल मिला था मिस्टर यूनिवर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द यूनिवर्स, सबसे ताकतवर इंसान दुनिया में। अगर आप खुदा को, अगर आप अल्लाह को किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता है। The moment you can compare God to anything in this world, He is not God. अगर आप God को किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो वो God है ही नहीं। You cannot compare God to anything in this world. अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, and there is nothing like unto him. और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल इसरा, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना. Say call upon him by Allah or call him by Rahman, by whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. आप अल्लाह को कहीं नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन ये नाम खूबसूरत होना चाहिए. You can call Allah by any name, but it should be a beautiful name. It should not conjure up a mental picture. जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना. Say call upon him by Allah or call him by Rahman, by whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला को रहमान के नाम से पुकार सकते हैं या रहीम के नाम से पुकार सकते हैं. और बहुत से लोग कहते हैं क्या अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज कर सकता है तो क्यों वो इंसान नहीं बन सकता है? अगर गॉड इंसान बन जाता है सो ही विल सीज टू बी गॉड, वो खुदा ही नहीं रहेंगे. क्यों? The moment Almighty God becomes a human being, he ceases to be God, because the qualities of Almighty God and human beings, they are opposite. क्योंकि इंसान के जो क्वालिटीज है वो अल्लाह के क्वालिटीज के मुताबिक वो मुख्तलिफ है, वो ऑपोजिट है. मिसाल के तौर पे हम इंसान को नींद की जरूरत है. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरत अल-बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 255 में, नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉट इज रिक्वायर्ड टू स्लीप. अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सोने की जरूरत नहीं पड़ती है. हम इंसान को खाने की जरूरत पड़ती है. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल अनआम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 14 में, वहुव युतइमु वला युतअम, एंड ही फीड्स बट ही इज नॉट फेड. अल्लाह सुब्हानहु व तआला खिलाते हैं लेकिन उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को खाने की जरूरत नहीं है, हम इंसान को खाने की जरूरत पड़ती है. So the qualities of Almighty God and human beings, they are opposite. And if in the same argument saying that why can't Almighty God, that if Almighty God can do anything and everything, then Almighty God, he can even lie, नाउज़ बिल्लाह. कोई ये भी कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला झूठ बोल सकते हैं, नाउज़ बिल्लाह. लेकिन झूठ बोलना इट इज अनगॉडली. और कोई ये भी कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला भूल सकते हैं, नाउज़ बिल्लाह. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरत ताहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में, ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, माय लॉर्ड ही डज नॉट फॉरगेट. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही डज नॉट फॉरगेट. अल्लाह सुब्हानहु व तआला नहीं भूलते हैं. So all these acts, they are ungodly. The moment Almighty God, he does these ungodly acts, so he ceases to be God. To lie, it is ungodly. To forget, it is ungodly. इसीलिए कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज कर सकते हैं,
क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर? Nowhere in the glorious Quran it says that Allah subhanahu wa ta'ala can do anything and everything. What does it say? Innallaha ala kulli shay'in qadir. Allah has power over all things. Allah को ताकत है हर चीज के ऊपर. और ये कहीं जगह कुरान में इसका जिक्र है इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर. In Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 106, in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 109, in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 284, in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 29, in Surah Al-Nahl chapter number 16 verse number 77, as well as in Surah Al-Fatir chapter number 35 verse number 1, innallaha ala kulli shay'in qadir. For verily Allah has power over all things. ये आयत से हमें समझ में आता है कि अल्लाह को ताकत है हर चीज के ऊपर और जो वो चाहता है वही करता है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-बुरूज सूरा नंबर 85 में फरमाते हैं फ़अालुल लिमा युरीद. अल्लाह इज द डूअर ऑफ व्हाट ही इंटेंड्स. सो जो भी अल्लाह चाहता है वो करते हैं. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 18 में, आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन. The deaf, the dumb, the blind, they will never return. और similar message है बाइबल में in the Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 13, seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. और इस मैसेज हिंदू मजहबी किताब में भी इसका जिक्र है. It is mentioned in Rigved, book number 10, hymn number 71, mantra number 4, verse number 4. Some see the word, yet they see it not. Others hear the word, yet they hear it not. So, in all of these scriptures, it is explicitly mentioned that you have to worship only one God who has got no images. ये सारे मजहबी किताब में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, कहा गया है क्या एक खुदा की इबादत करना चाहिए, एक गॉड की इबादत करना चाहिए. लेकिन फिर भी कोई लोग अंधे की तरह बिहेव करते हैं. दे बिहेव लाइक डेफ, डम एंड ब्लाइंड. और ये लोग पैगाम के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं. तो अगर आप मुख्तलिफ मजहबी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा खुदा का तसव्वुर, खुदा का सही तसव्वुर, क्या एक खुदा की इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए. और बहुत से लोग एक फिलॉसफी में मानते हैं जिसे कहते हैं फिलॉसफी ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. और इसका मतलब होता है क्या, दे से that Almighty God, He's so pure, He's so holy, He does not know the shortcomings of a human being, so He has to become a human being to know what is good and bad for the human being. क्या Almighty God, खुदा इतने मुकद्दस है, इतने प्योर है, इतने होली है, क्या वो इंसान के जो शॉर्टकमिंग्स है वो नहीं जानते हैं? तो जरूरी है क्या खुदा इंसान बने ताकि वो इंसान के बारे में जाने. ये कोई लोग समझेंगे क्या ये बहुत अच्छी लॉजिक है, बहुत अच्छा मंतिक है. क्या खुदा इंसान के बारे में नहीं जानता है तो जरूरी है क्या खुदा इंसान बने या इंसान की तरह आए ताकि वो इंसान के बारे में चीजें जाने, इंसान को सही तरीके से जाने. मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा. क्या अगर किसी ने कोई डीवीडी प्लेयर खरीदा है, अगर एक इंसान ने कोई डीवीडी प्लेयर मैन्युफैक्चर किया है, तो जरूरी नहीं है क्या जो इंसान ने ये डीवीडी प्लेयर बनाया है क्या वो डीवीडी प्लेयर बन जाए ताकि वो समझे कैसा इस्तेमाल करना चाहिए डीवीडी प्लेयर का. क्या करेगा ये शख्स? ये इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल लिखेंगे. ये इंसान ने जो इंसान ने डीवीडी प्लेयर बनाया है वो इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल लिखेंगे कि अगर आपको डीवीडी प्ले करने का है तो आप डीवीडी अंदर डालिए डीवीडी प्लेयर के अंदर और आप प्ले बटन दबाइए. अगर आपको आगे जाने का है तो आप FF बटन दबाइए. अगर आपको पीछे जाने का है तो आप रिवाइंड बटन दबाइए.
ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिराइए तो डीवीडी प्लेयर टूट जाएगा। डीवीडी प्लेयर को पानी में ना डालिए वरना खराब हो जाएगा। तो ये शख्स, ये इंसान इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल लिखेगा, एक किताब लिखेगा जिसके अंदर जिक्र है कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा यूज करना चाहिए डीवीडी प्लेयर का। जरूरी नहीं है कि ये इंसान जो डीवीडी प्लेयर बनाया है क्या वो डीवीडी प्लेयर बन जाए ताकि वो समझे कैसा डीवीडी प्लेयर को इस्तेमाल करने का है। इसी तौर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गॉड को, खुदा को जरूरी नहीं है क्या वो इंसान बने ताकि वो इंसान के बारे में सही तरीके से जाने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पैगंबर चुनते हैं इंसानों में से और उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ वही, वही के जरिए से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गॉड को, खुदा को जरूरी नहीं है क्या वो इंसान बने ताकि वो इंसान के बारे में जाने। वो इंसानों में से एक पैगंबर चुनते हैं और ये पैगंबर अल्लाह का पैगाम इंसान तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है क्या अगर हमें कोई भी मजहब जानने का है तो हम ये मजहब की मजहबी किताब पढ़े, और अगर हमें कोई भी मजहब जानने का है तो हम फॉलोअर्स को नहीं देखना चाहिए, ये मजहब के जो लोग हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम मजहबी किताब पढ़ना चाहिए। चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी मजहब हो, हम मजहबी किताब पढ़ना चाहिए अगर हमें सही तसव्वुर जानने का है इस मजहब के बारे में। और अगर हमें खुदा का तसव्वुर जानने का है कोई मजहब में तो हमें ये मजहबी किताब पढ़ना चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं क्या अगर हर मजहब अच्छी बात की तरफ बुलाता है, मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तो इस्लाम और ये मजहबी किताब में क्या फर्क है? मिसाल के तौर पे हर मजहब कहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, बलात्कार नहीं करना चाहिए, तो इस्लाम और ये मजहब में क्या फर्क है? Islam, besides focusing on the spiritual aspects, it even focuses on other aspects of life. And Islam, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. Islam में आपको practical तरीका दिखाया गया है जिसके अंदर सोसाइटी, हमारा माशरा अच्छा रहेगा। मिसाल के तौर पे हर मजहब, मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये सारे मजहब कहते हैं क्या हम चोरी नहीं करना चाहिए। इस्लाम कहता है, हिंदुइज्म कहता है, ईसाई कहता है, क्रिश्चियनिटी में इसका जिक्र है। तो इसमें और इस्लाम और ईसाईयत में क्या फर्क है? तो इस्लाम और ईसाईयत और हिंदुइज्म में क्या फर्क है? सारे मजहब, ये तीनों मजहब कहते हैं क्या चोरी नहीं करना चाहिए। इस्लाम, besides saying that you should not rob, it shows you a practical way in which people will not rob. इस्लाम में ये कहा गया है कि आप चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये कहा जाता है, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. एक practical way बताया गया है जिसके अंदर लोग चोरी नहीं करेंगे। इस्लाम में यह कहा गया है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल माइदा, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, इस्लाम में एक सिस्टम ऑफ ज़का है। हर एक इंसान जिसके पास माल है 2.5% के से ज्यादा, निसाब लेवल से ज्यादा, तो उसे जरूरी है कि वह ज़कात दे। और अगर हर एक इंसान ज़कात देगा तो ये दुनिया में
पावर्टी नहीं रहेंगी, गुर्बत नहीं रहेंगी। और इसके बाद अगर कोई भी चोरी करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह। As for the thief, whether it be man or woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. जो शख्स चोरी करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके हाथ काट दिए जाना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे हाथ काटना इस 21st सेंचुरी में, 21वीं सेंचुरी में, इस जमाने में, इस्लाम एक बारबैरिक रिलीजन है, इस्लाम एक पुराना दीन है। और यूएसए को लोग कहते हैं कि बहुत एडवांस कंट्री है। यूएसए में सबसे ज्यादा क्राइम और थेफ्ट किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर यूएसए में हर एक इंसान जिसके पास माल है, दौलत है, निसाब लेवल से ज्यादा 2.5% से ज्यादा, और अगर वो चैरिटी देगा, ज़कात देगा, और इसके बाद अगर कोई भी इंसान चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो रॉबरी, जो चोरी का जो रेट है अमेरिका में, क्या वो बढ़ जाएगा या सेम रहेगा या घटेगा? बढ़ेगा, सेम रहेगा या कम हो जाएगा? बट नेचुरल, जाहिर सी बात है, कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। मैं आपको एक दूसरी मिसाल देना चाहता हूं। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों मजहब कहते हैं क्या यू शुड नॉट मोलेस्ट अ वुमन, यू शुड नॉट रेप अ वुमन, क्या कोई औरत का बलात्कार नहीं करना चाहिए। तीनों मजहब कहते हैं ये। तो क्या फर्क है इस्लाम में और हिंदुइज्म में और क्रिश्चियनिटी में? इस्लाम, besides saying that you should not rape a woman, you should not molest a woman, it shows you a practical way in which people will not molest a woman, in which people will not rape a woman. इस्लाम एक प्रैक्टिकल वे आपको दिखाता है। मुआशरे में अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुआशरे में बलात्कार नहीं होगा। इस्लाम में एक सिस्टम ऑफ हिजाब है, इस्लाम में हिजाब का जिक्र है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करता है कुरान मजीद में। सूरतुल नूर सूरा नंबर 24, सूरा चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं, क्या मर्द से क्या आप अपनी नजर नीचे करिए और अपनी मॉडेस्टी रखिए। और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरतुल नूर, तो जब भी कोई इंसान एक औरत की तरफ देखता है, एक मर्द औरत की तरफ देखता है, इमीडिएटली फौरन वो अपनी नजर नीचे रखना चाहिए। नजर नीचे रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुन नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में, कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof. And tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mehrams of close relatives who you cannot marry. तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर रहे हैं औरत से, say to the believing woman that she should lower her gaze, क्या वो अपनी नजर नीचे रखे और अपनी मॉडेस्टी रखे और अपनी ब्यूटी डिस्प्ले ना करे। अपनी जो खूबसूरती है वो उसको ना महरम के सामने डिस्प्ले ना करे, ना महरम को ना दिखाए। एक्सेप्ट व्हाट इज ऑर्डिनरी देयर ऑफ। और इस्लाम में
6 क्राइटेरिया है हिजाब के मुतालिक, हिजाब के बारे में जो सही हदीस में इसका जिक्र है। पहला है द एक्सटेंट, जो आम जो जिक्र है मर्द और औरत के लिए। मर्द के लिए फ्रॉम द नेवल टू द नी, और औरत के लिए कामिल जिस्म जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, इल्ला क्या जो अब औरत का जो फेस है, जो चेहरा है वो खुला रह सकता है और हाथ सिर्फ। और कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना चाहिए औरत को, तो इसके अंदर इख्तिलाफ है। कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना जरूरी है। और रिमेनिंग 5 क्राइटेरिया, 5 पॉइंट जो है वो मर्द और औरत के लिए सेम है। जैसे कि मैंने कहा, एक्सटेंट फॉर द मैन, नाफ से लेके घुटने तक मर्द के लिए, और औरत के लिए कंप्लीट बॉडी शुड बी कवर्ड, कामिल जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ खुला रह सकता है। कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना जरूरी है। और 5 क्राइटेरिया इसके अलावा सब मर्द और औरत के लिए सेम है। दूसरा जो है, द क्लोथ्स दे वेयर इट शुड बी लूज, इट शुड नॉट बी टाइट फिटिंग। जो कपड़े पहनते हैं वो ढीले रहना चाहिए, टाइट नहीं रहना चाहिए। द थर्ड, इट शुड नॉट बी ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ऐसे कपड़े नहीं रहना चाहिए क्या आप अंदर का जिस्म देख सकते हैं उससे, जिसे ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट कहते हैं। द फोर्थ, इट शुड नॉट बी सो ग्लैमरस दैट अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट जेंडर। चौथी बात जो है, चौथा पॉइंट जो है वो है, क्या इतना झकपक नहीं होना चाहिए क्या दूसरे जो ऑपोजिट जेंडर जो है उससे अट्रैक्ट हो। तो औरत ऐसे झकपक कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिससे मर्द इससे अट्रैक्ट हो। The fourth is that it should not be so glamorous that attracts the opposite gender. The fifth, पांचवा जो है, it should not be that of the opposite gender. दूसरे जिन्स का नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और सिक्स्थ और छठा आखिरी पॉइंट जो है, ये कपड़े गैर मुसलमान की अलामत नहीं होना चाहिए। It should not resemble that of the unbelievers. मिसाल के तौर पे सलीब नहीं, मुसलमान सलीब नहीं पहनना चाहिए। तो ये 6 क्राइटेरिया है जो सही हदीस में जिक्र है हिजाब के बारे में। और मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा कि अगर 2 बहनें हैं, 2 औरत जो लाहौर की सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन या एक औरत वेस्टर्न कपड़े पहनी है, ऐसे लिबास पहनी है, छोटे लिबास, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। मिसाल के तौर पे उसके कपड़े सिर्फ घुटने तक है, वेस्टर्न क्लोथिंग। और दूसरी जो बहन है या दूसरी जो औरत है वो हिजाब पहनी है, कामिल जिस्म, पूरा जिस्म ढका हुआ है, जो इल्ला के सिर्फ ये औरत का चेहरा और हाथ दिख सकते हैं और इसके अलावा पूरा जिस्म ढका हुआ है। और एक बंदा जो सही बंदा नहीं है, जो होलीगन है या एक लफंगा टाइप बंदा है, ये इन दोनों लड़की को छेड़ना चाहता है, एक लड़की को छेड़ना चाहता है। तो कौन सी लड़की को छेड़ेगा? क्या वो लड़की को छेड़ेगा जो इस्लामी लिबास पहनी है, हिजाब, कामिल जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखे हुए, या वो छेड़ेगा जो औरत आधे कपड़े पहनी हुए है, कपड़े फॉर एग्जाम्पल मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, सिर्फ घुटने तक? कौन सी लड़की को छेड़ेगा? जाहिर सी बात है वो ये लफंगा उस लड़की को छेड़ेगा जो सही कपड़े नहीं पहनी है, जो वेस्टर्न कपड़े पहनी है, जो छोटे कपड़े पहनी है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह अल-अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में,
या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन. O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जब औरत बाहर जाती है तो वो क्लोक पहनना चाहिए, वो जिल्बाब पहनना चाहिए. अफसोस की बात यह है क्या हम देखते हैं हमारे माशरे में क्या बहुत से औरत जब बाहर जाते हैं तो वो हिजाब, वो जिल्बाब नहीं पहनते हैं, जिसे अबाया कहते हैं, जिसे बुरखा कहते हैं. बहुत जरूरी है ये पहनना औरत के लिए, और ये हिजाब में आता है. बहुत से लोग, बहुत से औरत अफसोस की बात यह है क्या सोचते हैं क्या सिर्फ सर ढाकने से हिजाब हो जाता है. ये कंप्लीट हिजाब यही नहीं है, ये पूरा हिजाब नहीं है. पूरा हिजाब है क्या आप लूज कपड़े पहने, और जब आप बाहर घर से निकलते हैं तो आप जिल्बाब, आप एक आउटर गारमेंट, आप बुरखा पहनिए. ये बहुत जरूरी है. हमारे माशरे में अफसोस की बात यह है क्या बहुत से हमारे बहनें सही हिजाब नहीं कर रहे हैं. तो मेरी गुजारिश है क्या आप हिजाब करिए कुरान और सही हदीस के मुतालिक. जब आप बाहर निकलते हैं तो जिल्बाब पहनिए, अबाया पहनिए, ये बुरका पहनिए, जो बहुत जरूरी है. तो अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे मुआशरे में तो मुआशरे में अमन होगा और क्राइम रेट गिर जाएगा. Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. Islam सिर्फ ये नहीं कहता है कि अच्छे अमाल करो और बुराई मत करो, लेकिन मुआशरे में आपको एक सल्यूशन दिखाता है किस तरीके से आप इस्लाम को नाफिज कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्राइम रेट को कम कर सकते हैं अगर आप इस्लाम के तालीम को फॉलो करेंगे. अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो मुआशरे में जो क्राइम है, जो चोरी है, जो बलात्कारी है, ये सब बहुत कम हो जाएंगे. और हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं क्या बलात्कार, चोरी बहुत बढ़ गई है. अगर आप इस्लामी शरिया नाफिज करेंगे तो ये सब जो बुरे काम दुनिया में हो रही है वो कम हो जाएंगे. जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है जो शख्स गॉड की मोहब्बत करता है, जो शख्स खुदा की मोहब्बत करता है. जू मीन्स अ पर्सन हु लव्स गॉड. इस तारीफ या इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं जू हूं. लेकिन अगर आप कहेंगे क्या जू एक इंसान है जो तालमुदिक और दूसरी मजहबी किताब को फॉलो करता है और कोई और चीज नहीं फॉलो करता है, तो मैं जू नहीं हूं इस तारीफ के मुताबिक. क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? Christian is a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. So by this definition, I am a Christian because I follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. Christian का मतलब होता है जो इंसान ईसा अलैहिस्सलाम के टीचिंग्स को फॉलो करता है. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्रिश्चियन हूं. But if you say that Christian is a person who worships Jesus Christ, peace be upon him, then I am not a Christian. अगर आप ये कहते हैं या अगर आप ये कहते हैं कि क्या क्रिश्चियन वो शख्स है जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता है, तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूं. So the definition of Jew is a person who loves Almighty God. So by this definition I am a Jew. But if you say that a Jew is a person who follows the Talmudic and other scriptures and does not follow anything else, then I am not a Jew. What is the definition of the word Hindu? Hindu का मतलब क्या होता है? Hindu, it refers to a geographical definition, to the people living in the valley of Indus, in the Indian subcontinent.
And when you happen to go to Saudi Arabia, the Arabs, they say, hey Hindi, this is a Hindi, meaning he's from India. हिंदू का डेफिनेशन जोग्राफिकली मतलब होता है जो इंसान इंडस वैली में रहता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इंडिया इंडस वैली में. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जोग्राफिकली आई एम हिंदू. लेकिन अगर आप ये कहें क्या हिंदू एक शख्स है जो बुत परस्ती करता है, तो मैं हिंदू नहीं हूं. What is the definition of a Muslim? Islam comes from the root word salam, which means peace. It is also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Thus, Islam means peace acquired by submitting your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Islam comes from the root word salam, which means peace. Islam is love se aata hai salam, jiska matlab hota hai amn. It is also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who submits his will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, he is called as a Muslim. And there were several prophets, several messengers, काफी पैगंबर भेजे गए इंसानियत के लिए, ताकि अल्लाह का पैगाम इंसान तक पहुंचे. और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल फातिर, सूरह नंबर 35, आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, एंड देयर इज नॉट अ नेशन टू हुम वी हैव नॉट सेंट अ वार्नर और अ गाइड. कोई भी ऐसी नेशन नहीं है, कोई भी लोग ऐसे नहीं है, नेशन जिसको अल्लाह ने पैगंबर नहीं भेजा. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुर राद, सूरह नंबर 13, आयत नंबर 7 में, सूरतुर राद, सूरह नंबर 13, आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, and to every nation we have sent a messenger. हर एक नेशन को, हर लोग को हमने एक पैगंबर भेजा है. नाम से 25 पैगंबर का जिक्र है कुरान मजीद में और ऑथेंटिक अहादीस में और कुरान मजीद में. मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25 पैगंबर का जिक्र है कुरान मजीद में और सही अहादीस में. लेकिन इसके अलावा भी पैगंबर थे, नबी थे, प्रॉफिट्स थे. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. और लेकिन सब पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो भेजे गए, वो सिर्फ उन लोगों के लिए भेजे गए. They were only sent for a particular people and for a particular time period. वो भेजे गए सिर्फ एक कौम के लिए और एक खुसूसी वक्त के लिए. लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिर्फ अरब के लिए नहीं भेजे गए, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं भेजे गए, लेकिन वो सारे इंसानियत के लिए भेजे गए. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल अंबिया, सूरह नंबर 21, सूरह नंबर 21, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. क्या हमने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन जैसा भेजा गया है? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को रहमत की तरह के भेजा गए. नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए रहमत है. और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुर राद, सूरह नंबर 13, आयत नंबर 38 में, लिकुल्लि अजलिन किताब वलिकुल्लि अजलिन किताब, एंड फॉर ईच पीरियड वी हैव सेंट अ बुक. हर जमाने के लिए हमने एक किताब भेजा है. नाम से 4 किताबों का जिक्र है, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान. तौराह ये वही था जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया. ज़बूर वो वही था
जो पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया। इंजील वो वही था जो पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी पैगाम है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए है, और ये कई बार इसका जिक्र है। कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए, सिर्फ अरब के लिए नहीं है या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, लेकिन सारी इंसानियत के लिए है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 152 में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, और सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 में, क्या कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए भेजा गया, सिर्फ अरब के लिए नहीं या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद भेजा गया। मैं इस तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा कुरान मजीद के आयत से, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। Invite to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious। क्या सबको अल्लाह की तरफ बुलाइए, invite all to the way of thy Lord with wisdom, हिकमत के साथ, and beautiful preachings, और अच्छे तरीके से, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और उनसे जब जिदाल कर रहे हैं, when you're arguing with them, जब आप उनके साथ जिदाल कर रहे हैं तो वजादिलहुम बिल्लती अहसन, अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से करिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।